Okay, I'll begin with the description of the new feature that we have added in Total PEC OI tool. And after that, we can do whatever questions you have, I'll clarify, and whatever doubts you have, I'll clear those. So let me go to, the new feature that we have added is over here in this Total PEC OI, diff new. This is the one to use. This is the old one. This is the one to use now. So should I continue in English or you want Hindi? Which one is preferable? Study in both language. Both? Means English, Hindi, don't. Oh, if you don't, if possible, then English is okay, sir. Okay. Okay, fine. I'll continue in English. If anybody has any doubt, just let me know. I'll explain in Hindi also. So, okay, the new feature that we have added, see, is over here. If the main thing is to select 3 minutes interval and then just collapse this data where you have charts here. So this is the one that we have added. These charts were already there. These were already there. We have added this one. So I'll explain what this is. I'd already explained this in my previous webinar, but I'll explain in detail because we just made few changes. So what we are doing here is, see, earlier when we had this, we were showing this is on OI change, which shows you the buildup that is happening. That means either buildup or unwinding or whatever is happening, but mostly focusing on buildup over here. So here that chart also is there. So we have call and put buildup that is happening. So total of that, but this one is slightly different. And this is the main one that is of the focus over here. This and these top 2 charts. The bottom 2 charts are the build-up charts and top 2 charts are the unwinding charts. So here, these 2 lines that are there, green and red, these show you the total build-up for the day since market open. So this is nothing but from morning, if you see, whenever this negative OI change happen, this is unwinding. So this unwinding, we are just adding up. Now, if you see, this unwinding, we are just adding up and showing it over here. So if you see first, call side unwinding has started. So you will see that here also, morning, first few minutes, there was no unwinding. So here also no unwinding for first few minutes on both sides, call side and put side. Once unwinding starts here, we are adding this up. We are adding this, so and showing it over here now. Approximately 59,000 something. So here also it is after 2 minutes or 2 sets of rows, we have 59,000 or so call side unwinding. And put side unwinding, it's showing as 0 over here because there is no unwinding over here. So this now we keep adding. Now here put side also started. So here also from here put side unwinding also started. So the whole thing, it just keeps adding up. So the total of unwinding that is happening for the whole day, we show it here. So now like build-up, whichever line is up, so right one is happening on that side. That is what we are saying. So and that is so it's supposed to be bullish because over here put build-up is happening. So we are saying the market is bullish. So similarly here also, the unwinding is the opposite side of it. So whichever side unwinding is happening, on that side, the market sentiment is going. That is what this is saying. Even though like the market is falling over here, now over here it shows initially that it's bullish. Over here, then one put side unwinding starts and it goes below the call line, then it indicates that now this is bearish over here. And here again, the call unwinding is starting. Now here, whatever difference that is happening, so now this is very wide. So for these two to catch up and then give you another signal, reversal signal. So before that, you can judge from here. This is 15 minutes, every 15 minutes unwind. That is the last 15 minutes unwinding. So whatever is happening in the last 15 minutes, we are showing it here. So whatever trend is indicated
over here. So whichever side, whichever line down over here, that has the bigger unwinding, and that is the side market may tend to go. That is what this indicates. But reversals you can catch over here. If you see now here, call unwinding, huge call unwinding is starting over here. Whereas over here in the morning it was little bit over here, and then it turned to put side unwinding over here. Now big reversal probably is happening. That is what this is indicated. And here before this reversal happens, you see unwinding up around 11:15 it's happening. So around from here 11:15 onwards, the call side unwinding is starting. It is visible here. Here if you see this line is coming down, so unwinding is starting over here. So this is what this indicates. You need to keep an eye on both the charts, and not just both the charts, and you also need to confirm with build-up charts also. See, what build-up does is, this is going to actually push the market. When actual build-up happens, that is when the market will get pushed really hard, whichever side it is on, whether it's to the downside, whether it is to the upside. So build-up will actually push the market further. But reversals happening and you getting indications, many times what is going to happen is unwinding is going to show you those indications quickly. If you see this, the reversals, in this case, a particular day, if you see, that's the reason why you need to watch both the charts, because over here, the reversal to the upside has happened faster over here. Where if not faster, actually, there is no downside indication here at all. If you see, it came very close here and then it continued over here. But over here, some downside indication was there. So these signals tend to be faster. But then you need to check both and confirm. You need to check. That's the reason why both the charts we have given those. So you need to confirm, take a look at both and then decide. So many times this is going to be very, very fast. So you will see the changes in unwinding charts faster because whenever there is a risk on one side, unwinding happens, as we say. So market is going to the upside, then call side unwinding will start quickly because whoever has shorted calls, if market is going up, then their positions will be at risk. So they'll try and close the positions and then take the positions up, maybe close a particular strike and then short a strike above that if market is going to the upside. So unwinding happens and then they do it quickly. So because they don't want too much risk or they don't want to take too much loss. Well, build up is going to happen slowly, but it is going to be more decisive. I mean, if the market really has to go far, then the build-up has to happen. Reversals, you can catch quickly in unwinding because they'll be faster. You can use both these charts. And the trend itself, you have to confirm using both. The reversals will take really long time to show up in build-up charts. They'll show up in unwinding charts faster. So that's the idea behind this. Again, this is the build-up, 15-minute build-up. So here, if you see, now here as the market is going, you need to see these build-ups happening. So put build-up is happening over here, very little over here. That's the reason why price is all sideways. It's all gone sideways. So, but at least initially you need to see good push coming from whenever reversal is happening. You need to see good build-up happening on the put side, so for the market to go up. And similarly, on the call side, if market has to go down. So you need to take a look at this also. So whenever reversal is happening, make sure you see some build-up, significant build-up happening during the reversal. Previously, you will not see unwinding or something, unwinding the main unwind along with the build-up, unwinding is also happening. So this, of course, you will be checking it first because whenever reversals are happening, these two charts are very important. And for the trend to continue, these two charts will be very important. Let me see if there are any questions. On the right-hand side, the unwinding and 1 minute. I'm looking at the questions that have been sent in chat. So on the right-hand side, the unwinding and the build-up indicate 15 minutes, with the bar chart shows only 3 minutes. This seems confusing. We are showing trailing 15 minutes unwinding and build up over here. Of course, the chart is 3-minute chart, but see if we give 3 minutes build up also, it will be very
erratic. It will not be consistent. You can't catch the trend over here, or you would not know which side it is really happening. So that's the reason why after experimenting, we have selected 15 minutes, because this has the most good balance. So if we can show 15-minute chart also, but then you would not be able to see what is happening per 3 minutes. So even though we are showing this is again, even though this we are showing every 3 minutes, but every 3 minutes also, it's a total of last 15 minutes what has happened. So that's the reason why it's like this. So it's not a discrepancy as such. We are just totaling 15-minute unwinding for the last 15 minutes unwinding, and then we are showing it. Same for the build up. So even though the chart is 3 minutes, so if we, as I said, if we show 3 minutes build up, the thing is there will be lots of fluctuations, where very big bar over here, then small bar over here, and that kind of thing. So that's the reason why we are not doing that. Another 1 minute. Any next question? Will it be similar on expiry day, other aspects? You'll have to check that now. It should be similar. It should be similar. It's just that the movement is going to be really fast. We can check on expiry day 1 minute. Of course, on expiry day, make sure that once you get to the end of the day, you have to be very careful. So other than that, it should be same. But let me check. Expiry was on 9th, right? 9th December. Ninth December. Should be similar if you see big initial put side. So this initial move put side. Once reversal is starting, you have this big unwinding over here. Build up also is showing up over here. After that, the build ups are less. This build up is there, and then yeah, after this, as you say, it may not be too reliable, but here some unwinding has been shown. Once it breaks down, that's it. But you have to be a little bit careful over here. If you see, it has shown clearly this upside over here, but here it's like it did show up over here the whole way. It's showing downside. As I said, reversals are going to be slow in build-up charts. That's the reason why unwinding charts are there. So the reversal happened only over here for a while. Then again, it gave a negative signal over here, which did not happen here at all. This happens on expiry day. More questions? सर आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए सर. हाँ सर, ये इसमें ये पूछना था कि जैसे कभी कभी मैंने कई बार देखता हूँ कि ऊपर टोटल अनवाइंडिंग जो है वो हाँ, डिक्रीज हो रही है, मतलब अनवाइंडिंग दिख रहा है और नीचे बिल्डअप भी हो रहा है, दोनों एक ही साथ कैसे हो रहा है? बिल्डअप और अनवाइंडिंग एक ही साथ, हाँ क्यों नहीं हो सकता है. हाँ. ये तो टोटल है, यानी कि 1 मिनट डेटा में जाके बताता हूँ. हम्म. अब यहाँ पे ये जो है, हम लोग ये पूरा का पूरा टोटल दिखता है इसमें. ये जो पहले का अनवाइंडिंग होता है वो भी दिखता है, लेकिन वैसे भी बिल्डअप भी यहाँ पे हो रहा है ना, बीच में बिल्डअप भी है यहाँ पे. आप देखिए, ये सारा बिल्डअप ही है, ये सारा बिल्डअप ही है, ये अनवाइंडिंग है, इस तरफ भी बिल्डअप है. तो बिल्डअप अनवाइंडिंग बोथ साइड होता है, लेकिन ये इसके और ये दोनों का टोटल हम लोग करते रहते हैं. तो ये टोटल तो रहेगा, इसमें टोटल तो दिखेगा वैसे भी आपको, दोनों साइड का टोटल है ये. तो ये तो ऐसे ही चलते रहेगा. ये एक बार पर ये अनवाइंडिंग हुआ तो कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, जैसे कि लग रहा है कि सी अनवाइंडिंग हो रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे देखिए तो लगता है सी बिल्डअप भी हो रहा है, तो वो कंफ्यूज करने लगता है. हाँ, लेकिन पोजीशंस तो दोनों साइड ऐड होते ही रहते हैं. तो अनवाइंडिंग होता है या नहीं, बस वो अलग है, वो तो डिपेंड करता है. आपको ये तो अनवाइंडिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? सॉरी, अनवाइंडिंग कैलकुलेट कैसे होती है, मतलब किस बेसिस पे? वो पिछले बताया ना, 3 सबसे मिनट पहले के. ये जो है, ये यहाँ पे जो अनवाइंडिंग है, हाँ. ये 150 है, 170 180 ऑड है, 180 ऑड पुट के साइड से चालू हुआ है. 180 जो रहेगा यहाँ पे 180 लिख रहा है, तो पुट साइड का अनवाइंडिंग.
यहाँ पे सर साउंड नहीं आ रहा है। जीरो है, यहाँ पे nothing नहीं, तो ये जीरो ही दिखाएगा पूरा का पूरा, यहाँ तक जीरो है, यहाँ से चालू हुआ, तो यहाँ पे जब चालू हुआ, यहाँ पे 10-3 यहाँ पे 10-3 के पास यहाँ पे 48 चालू हुआ। सर वॉइस नहीं आ रही है, सॉरी, सर वॉइस कट गई, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो मेरा, आवाज नहीं आ रहा है मेरा? नहीं। हेलो, कैन एनीबडी हियर मी? यस सर, हेलो, यस सर, यस ओके, यस, आवाज आ रही है सर, थोड़ा बीच में ब्रेक होके आ रहा था। ओके ओके, हम्म। सर अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ, ठीक है सर। यस आ रहा है हाँ सर। हाँ सर, तो ये आपको समझ में आया है, ये टोटल टोटल अनवाइंडिंग है, ये टोटल अनवाइंडिंग। तो ये जो है ये इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, और वो हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते जाएंगे। ओके। और ये इसका ट्रेंड कौन सा लाइन नीचे है उसका जनरली ट्रेंड है। तो एक बार यहाँ पे आप एक्सपायरी 230 240 गए या किसी भी से, तो उसके बाद नहीं करेगा। पर वो लास्ट का जो ये पार्ट होता है वो तो वैसे वो मार्केट इंट्राडे पोजीशंस क्लोजिंग होता है, दोनों साइड आपको दिखाएगा, यहाँ तक बराबर रहेगा। तो ये क्या दोनों का आपको दोनों साइड हो सकता, पर उतना नहीं था, ये आप देखेंगे तो ऊपर था, लेकिन ओवरऑल सर माइक माइक crazy तो था। प्रॉब्लम है सर, आवाज फिर से नहीं आ रही है। ओके सर, ये अब तक क्लियर है ये कंसेप्ट? ये टोटल अनवाइंडिंग दिखाता है, जो लाइन नीचे है जनरली मार्केट उस तरफ होता है, लेकिन आपको ये जब बहुत दूर जाता है और ऐसे साइड में जाते रहता है, तब आपको यहाँ पे देखना है कि कुछ रिवर्सल आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये टोटल वाला है, क्योंकि पूरा दिन से सुबह से जितना वो हो रहा है अनवाइंडिंग वो दिखा रहा है, तो आपको रिवर्सल आप यहाँ पे इजीली पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको पूरा यहाँ पे स्टडी जा रहा है, दोनों लाइन ऐसे फ्लैट जा रहा है, तो यानी कि ज्यादा कुछ अनवाइंडिंग दोनों साइड चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि पुट साइड अनवाइंडिंग यहाँ पे चालू हुआ है, यहाँ पे चालू हुआ है, तो यहाँ पे वो सडन दिखाएगा नहीं वो, क्योंकि ये टोटल सही है, तो यहाँ पे आप कैच कर सकते हैं। सर इसमें वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, एट प्रेजेंट वॉल्यूम का इस पे कोई फोकस नहीं, ये कंसेप्ट वॉल्यूम पे नहीं चलेगा, बहुत बार देख लिया है मैंने, बहुत रिक्वेस्ट आए थे वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये वॉल्यूम ऐसे लाइंस चार्ट में भी हमने डाल के देख लिए हैं, कॉल साइड वॉल्यूम पुट साइड वॉल्यूम काम नहीं करेगा इसमें। सर ये 15 मिनट बाद ऑटो रिफ्रेश होता है ना, 15 मिनट बाद? ये तो एवरी 3 मिनट्स अपडेट होगा ना, ये ओआई है नहीं, ये। सुबह सुबह ये जो कॉल टोटल अनवाइंडिंग है वो 9:30 को अपडेट होगा पहली बार, फिर 9:33 इस तरह से होगा। 9:21 से चालू होगा ये। 9:21 से ही चालू हो जाएगा। हाँ, ओ लेकिन अब ओके उसमें सर। अनवाइंडिंग आएगा या नहीं वो बोल नहीं सकेंगे। तो नहीं नहीं नहीं, ठीक उसका अपडेशन टाइम पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ। हाँ, ओके अपडेट तो 9:21 से चालू है वो, इसमें ओके। यहाँ पे जब डेटा आ जाएगा, बस यही हम्म। डेटा है यहाँ पे, तो ये ओके डेटा ओके। जब आएगा 9:21 से आपको दिखेगा इसमें, हम्म। फेयर वैल्यू उसके पहले अपडेट होगा, लेकिन जैसे ही 9:21 को ये आएगा तो यहाँ से हम्म। चालू हो जाएगा, लेकिन नहीं अनवाइंडिंग सर, अब। हाँ, जब हम 3 मिनट रखते हैं तब नीचे मैसेज आता है कि 15 मिनट बाद अपडेट होगा, इसलिए सुबह मैंने एक बार ट्राई किया था ये। नहीं नहीं, 15 मिनट पे अगर ये 15 मिनट में लगाएंगे आप, हम्म। तो यहाँ पे ये हम्म। दिखाता है कि ये चार्ट सिर्फ 3 मिनट के इंटरवल पे चलेंगे, तो ये आपको तीन ओके मिनट ओके करना पड़ेगा, ये दिखाता है ये। ओके
ये बता तो रहे हैं इसका हम। अपडेशन टाइम भी 3 मिनट, जैसे ही हमें एनएससी डेटा देगा आफ्टर 3 मिनट्स, तो इसके बाद ये अपडेट हो जाएगा एवरी प्रोसेसिंग एवरी करके। 3 मिनट्स, फेयर वैल्यू एवरी मिनट होगा, लेकिन हम्म, ओआई तो एवरी 3 मिनट्स ही आएगा, तो एवरी 3 मिनट्स ही अपडेट होगा ये वाला। अच्छा। अच्छा सर, अच्छा, हमारे तो पास राइट में जो लिखा हुआ अनवाइंडिंग 15 मिनट, ये कितनी देर में अपडेट होगा ये वाला? एवरी 3 मिनट्स ही होगा ये भी, क्योंकि ये लास्ट 15 मिनट्स का देता है। तो ये एवरी 3 मिनट्स में जो है, ये अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये पिछले 15 मिनट का, यहाँ से 15 मिनट का दिखाएगा, फिर यहाँ से 15 मिनट का दिखाएगा, ऐसे रहेगा ये। तो एवरी 3 मिनट्स होगा, ये भी एवरी 3 मिनट्स ही अपडेट होगा, लेकिन ये 15 मिनट का टोटल है, ये दिखा रहा है। तो ये भी हर 3 मिनट में चेंज होगा, जैसे ये हर 3 3 मिनट हो रहा है। अब यहाँ से 3 मिनट मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 इंटरवल का टोटल दिखाएगा ये। ऐसा होता है ये 15 मिनट, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के बाद ही अपडेट होगा। और सर दूसरा, हमारे पास ओआई स्टेट भी है, ओके। तो हाँ, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है सर? दोनों बोथ आर सेम? नहीं नहीं, इसमें उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है एक्चुअली। इसका उसका कोई भी लिंक नहीं है। वो सिर्फ कॉमन सिर्फ इतना है कि वो ओआई दिखाता है, ओआई चेंज, ओके। ओआई और ओआई चेंज दिखाता है। ये पूरा बिल्डअप और अनवाइंडिंग अलग ही है ये। अब ओआई, ओके। ये नीचे के दो चार्ट्स आप बोल सकते हैं कि उसको ज्यादा लिंक्ड है, ये तो है लिंक्ड है ही नहीं, तो वो तो बहुत अलग है। ओके सर। वो तो ये जो है ऑप्शन ओआई स्टैट्स जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना। यस सर, यस हाँ, यस। ये तो सिर्फ प्योर ओआई चेंज है, लेकिन ये हर 3 3 मिनट में जो दिखाता है वैल्यू, उसका टोटल या अनवाइंडिंग का टोटल है। ये अनवाइंडिंग मतलब ये जो है, इसके टोटल्स हैं वो, टोटल पीसीओ ओआई में। तो इसका उसका डायरेक्ट लिंक कुछ भी नहीं है इसमें। ये डेटा और वो ओके। डेटा में कुछ भी लिंक नहीं रहेगा उसमें ज्यादा, तो अलग। अच्छा सर, हाँ, ये पीएमडीके के साथ कर सकते हैं इसको यूज? किसके साथ सर? पीएमडीके के साथ। प्रीमियम डीके के साथ, हाँ बोल मतलब, हाँ वो आप कर सकते हैं, दोनों का मैच करने का ट्राई कर सकते हैं, यानी कि वो भी कंफर्मेशन ले सकते हैं आप। बराबर है, आप ले सकते हैं। और एक डेटा दूसरा की प्राइस एक्यूरेसी वर्सेस कितनी ओआई है में। इसमें? सॉरी, एक साथ एक बार बोलिए, कोई सर भी एक। मैं बोल रहा हूँ प्राइस वर्सेस ओआई में कर सकते हैं इसको? हाँ, ये सर, ये कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं ये, क्योंकि प्राइस वर्सेस वाई प्राइस बेस्ड है, ये ओपन इंटरेस्ट बेस्ड है, ये सेंटिमेंट है, वो प्राइस है। तो कंफर्मेशन के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, या ये ट्रेंड चल रहा है या नहीं, एक्चुअल प्राइस में अगर देखना है तो आप प्राइस वर्सेस वाई या फिर प्राइस चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगी हमको? हाँ, कंफर्मेशन बेसिकली ट्रेंड ट्रेंड किस तरफ जा रहा है ये आपको इसमें पता चलेगा। आप प्राइस वर्सेस वाई वगैरह डायरेक्ट आप सिग्नल्स के लिए यूज कर सकते हैं वो। तो ये तो आप ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, वो उसके लिए है ये। अच्छा, और रिवर्सल कैच करना हो तो उसके लिए हम ये यूज हाँ, कर सकते रिवर्सल में भी ये काम को आएगा, अनवाइंडिंग के चार्ट्स काम को आएंगे। हैं? ठीक है सर, ठीक है। मतलब लाइन क्रॉस करेगी एक दूसरे को? हाँ, वो तो मेन सिग्नल है। और यहाँ पे अगर ये जैसे ऐसे मैंने जैसे बताया कि फ्लैट हो गया और ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर आप तब ये देखेंगे यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, उसी टाइम पे यहाँ पे इस टाइम पे जो फ्लैट जा रहा है ये, तो उस हाँ, टाइम पे यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है क्या। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अगर यहाँ पे पूरा साइलेंट था, फिर यहाँ पे बड़ा सा अनवाइंडिंग आया, पुट ठीक साइड है, का अनवाइंडिंग आया, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे। तो ये अगर इधर आप, टोटल अनवाइंडिंग में ग्रीन लाइन अगर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे अचानक से, हाँ, वो तो फिर बुलिश हो जाएगा, फिर रिवर्सल बुलिश हो जाएगा। रिवर्सल हो जाएगा। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। राइट। एक मिनट, सर चैट। इसमें सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है ना, मतलब सिंगल निफ्टी बैंक निफ्टी, तो इसमें कोई ऐसा टेबल है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट हम देख सकते हैं अनवाइंडेड वाला? नहीं नहीं, वो आप डिवाइस में ट्राई कर सकते हैं देखने के लिए। डिवाइस प्राइस एंड वॉइस समरी जो है, इसमें मैंने तो निकाल दिए थे रिसेंटली। आप कॉलम्स, ये वाले कॉलम्स ऐड कर लीजिए, अच्छा, ये डिवाइस। वाई चेंज वाले। तो इसमें आपको ओके। दिखेगा, अगर ये अगर मैं ऐड करूं और ये डिफरेंस ऐड करूं इसमें, तो ये लास्ट एंड में आप जाइए, तो ये जो है वाई चेंज, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है नेगेटिव वाला, सॉरी राइट, करेक्ट। नेगेटिव जो है वो अनवाइंडिंग है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाले यस यस। जो जो भी माइनस आप देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे अगर देखने का है कॉल साइड बुलिश अनवाइंडिंग कोई हो रहा है, तो लेस देन जीरो एंटर कीजिए। तो ये सारा कॉल साइड अनवाइंडिंग हो रहा है, यानी कि ये बुलिश है। तो कॉल साइड अनवाइंडिंग हम लोग यहाँ पे ग्रीन दिखाते हैं वैसे भी, क्योंकि ये बुलिश होता है। तो ये सारा बुलिश रहेगा। अब ये कॉल साइड अनवाइंडिंग भी चाहिए आपको और पुट साइड बिल्डअप भी अगर चाहिए, तो यानी कि बहुत ही बुलिश है, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो।
तो ये वाले सारे बहुत बुलिश हैं। अब देखेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप भी है, तो ये दिखाता है आपको। तो ऐसा आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी। Hi Shri, sorry, maybe I had joined a bit later. या वो जो अभी फीचर वो ऐड किया है फॉर OI stats and COI डिफरेंस में, हाँ दिस वन, हाँ, ये जो अनवाइंडिंग 15 मिनट्स वी आर सेइंग, मतलब फॉर लास्ट 15 मिनट्स। या ट्रेलिंग 15 minutes, yes, last 15 minutes. So तो आई डिडंट गेट, at this point हाँ, over here, at 9, 10, 18, it's the sum of unwinding for the last 15 minutes. ओके ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज Yeah, फॉर लास्ट 15 मिनट्स। yes. ओके 10, ओके, 3 to 10, 18. It's like या that. गॉट इट, Yeah. थैंक्स। Okay. सर इसमें डेटा की एक्यूरेसी कितनी है? Sorry, आपका आवाज नहीं है। सर बोलिए। सर डेटा की एक्यूरेसी इसमें कितनी होगी? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मेरे लिए। ही इज आस्किंग कि इसमें आप डाटा इस एक्यूरेसी कितना है। एक्यूरेसी, ये तो डायरेक्ट डेटा पे ही बेस्ड है। तो एक्यूरेसी तो ये तो सारा डेटा एनएससी से है। बस हम लोग सिर्फ इसको कंप्यूट करके इसका कितना ओआई चेंज है निकाल रहे हैं, नेगेटिव ओआई चेंज को हम ऐड करके दिखा रहे हैं। तो एकदम परफेक्टली एक्यूरेट रहेगा ये। ऐसा इसमें कोई इश्यू नहीं है, डेटा का इश्यू नहीं रहेगा इसमें। ऐसा हम लोग सर कोई कभी कभी स्पेशल मैं देखता कंप्यूटेशन हूँ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ डेटा दिखाने का, ये वाला जो टेबल में जो डेटा है वो एक अलग तरीके से दिखा रहे हैं बस। और इसमें कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं है। हाँ, बस डेटा दिखाने का तरीका अलग है बस। टोटल्स कुछ किए हैं हमने और वो डेटा दिखा रहे हैं। उस टाइम के लिए आप इसको मॉनिटर कीजिए तो आपको आइडिया आएगा। ये काफी काफी टेस्ट करने के बाद हमने रिलीज किया है इसको। काफी टाइम से वर्क चल सर रहा था। मैंने मॉनिटर किया था, तो कभी कभी देखा कि ये 2-3 मिनट बाद कभी विग बहुत बड़ी बना देता है, फिर थोड़ी सा एडजस्ट करके उसको ठीक कर देता है या छोटी कर देता है। तो ऐसा डेटा का कुछ रिफ्रेशमेंट में कुछ गड़बड़ है या कुछ और है? नहीं, डेटा तो एग्जैक्ट रहेगा। आप ये बराबर इसको यहाँ यहीं से वेरीफाई कर सकते हैं। बस इसी टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। और कुछ करना नहीं है, सीधा यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके। तो श्री यहाँ पे आप देखिए ये वाला पुट वाला पहले वाला जो अनवाइंडिंग है -153,318, यही है -153,318, वही रहेगा ये। और बस ये टोटल है, इसीलिए नेक्स्ट पे जो रहेगा 182,256, क्योंकि ये और ये ऐड होके यहाँ पे आया है 18 जो भी है यहाँ पे 182 जो भी दिखा रहा है वो है वो। बस इसके टोटल्स हैं वो, और कुछ भी नहीं है वो। आप वेरीफाई बराबर कर सकते हैं इसको ऐसे। इसमें एक्यूरेसी परफेक्ट रहेगा इसमें। यहाँ पे जो आपको डेटा दिख रहा है बस वही डेटा यहाँ पे आ रहा है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे टोटल कर रहे हैं, बस चार्ट टोटल करके दिखा रहे हैं बस। Okay, Shri, whichever strikes we are selecting, either we are selecting near ATM 3 strikes or 5 strikes, it will show for respective those strikes only. Yeah, this is based only on the selected strikes. So whatever strikes you have selected here, now this is for all strikes. So whatever you select here, it will be based on that. हाँ, तो आपने जो कोई भी बोल रहा था कि डेटा चेंज हो रहा है, तो आप ये ऊपर का सेटिंग आप चेक कर लीजिए। ऊपर का जो, अगर आपका ये नियर ATM 7 रहेगा विथ ऑटो एडजस्ट, तो फिर वो चेंज होता रहेगा। तो फिर आप फिक्स्ड रखिए या फिर ऑल स्ट्राइक्स रखिए या फिर सेलेक्टेड रखिए, तो ये फिर सेम रहेगा वो, वरना फिर चेंज होता रहेगा। ऑटो एडजस्ट मत रखिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑल स्ट्राइक्स रखिए तो फिर कुछ चेंज नहीं होगा, फिर वो एक ही रहेगा, ऑल स्ट्राइक या फिक्स्ड ATM या फिर सेलेक्टेड स्ट्राइक्स। So Shri, this data is also almost 5 minutes delay, na? This will be, about 3 minutes. 1.5 minutes. NSE computes every 3 minutes, and we have a delay of about 1 minute 30 seconds, so 4.5. Right. Yeah. So almost 5 minutes we are getting, eh? Yeah. Okay. So basic main delay, if you are checking with real time, is again going to be only 1.5 minute basically. So if whenever real time also gets OI, they get it every 3 minutes only. So whatever delay is, whether it's price or OI, it's only 1.5 minute from our side. No, that's okay. From your side is 1.5 minutes, but but the data itself, comes every 3 minutes, 5 minutes only. 4.5 minutes. Yes. So is there any platform which gives live data? Matlab, it's not more 3 minutes delay from NSE side. Either it is no. NSE itself gives every 3 minutes. So whether it is any top institution or let's say somebody looking at the terminal, so everybody gets, because they compute itself every 3 minutes. So there is no question of real time OI. It will never happen.
as markets will grow and more volume will get added, so Right. it may even increase the delay. US markets only give at the end of the day. They don't even give during the day. Of course, the reasons are different also because there are too many exchanges, so they cannot add it up. Right. So more activity happens, more trading happens in the future. It may even get delayed from 3 minutes to 5 minutes also. So can't say they will not definitely not happen real time anytime. So So most no, likely. still it is giving us some sentiment about the what sentiment is going there. Exactly. Yeah. As long as you are not scalping, so this is very Right. useful information. Right. So if Right. your Right. trades Thank are going to go on for 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour, then this is really good. you. Right. I'll take a few questions from chat. On chat, lots of people have. बिल्डअप एंड अनवाइंडिंग दोनों मतलब हाँ बोलिए. चेतन बोल रहा हूँ ये बिल्डअप एंड अनवाइंडिंग ये मैं नया जो है यूज नहीं किया हूँ थोड़ा ये टेबल समझा दीजिए ये वाला डेटा टेबल. हाँ नहीं डेटा टेबल नहीं नीचे वाला चारों चार्ट जो है ना हाँ ये तो टोटल बिल्डअप है सर पूरा. बेसिकली अभी यहाँ पे ओआई चेंज जो होता है, हाँ जब पॉजिटिव ओआई चेंज होता है यानी कि हाँ ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ता है ओके तो इसको हम बिल्डअप कहते हैं. ठीक तो यहां से यहां बढ़ गया, यहां से यहां बढ़ गया कॉल के साइड. ओके तो ये इतना इतना ओआई ऐड हुआ, फिर इसमें हाँ इन 3 मिनट में इतना ओआई ऐड हुआ. तो ये हम लोग इसको हम टोटल करते जाते हैं और ओके इस तरफ भी टोटल करते जाते हैं. तो वो बिल्डअप कहते हैं और वो यहाँ लाइन के इससे प्लॉट होता है, लाइन में प्लॉट हो जाता है. ओके ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 4 लाख या 5 लाख कुछ हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे वही वही वैल्यू रहेगा उसमें 4.6687. तो ये यही जो वैल्यू रहेगा वो वहां पे आएगा. ये तो ये बिल्डअप ऐड होता है इसमें. यहाँ पे अब यहाँ पे बिल्डअप यहाँ पे देखिए थोड़ा कम हुआ है, यहाँ पे 7.7 लाख से 6.18 हुआ. तो ये अनवाइंडिंग है. तो ये ओके अनवाइंडिंग होगा तो फिर ये यहाँ इस लाइन में ऐड नहीं होगा. पुट के लाइन में यहाँ पे ये पुट के लाइन में ये ऐड नहीं होगा. पुट के लाइन में बिल्डअप यहाँ से यहाँ यहीं तक रहेगा. फिर बिल्डअप यहाँ से ऐड होगा, यहाँ ये जो भी टोटल था उसमें ये फिर से ऐड हो जाएगा और फिर से यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा फ्लैट हो गया था क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बिल्डअप अनवाइंडिंग हुआ था. यहाँ पे देखेंगे वो अनवाइंडिंग यहाँ पे दिखेगा आपको. तो ये इसके जो अनवाइंडिंग वाले टोटल्स है ये इस चार्ट में दिखेंगे. बिल्डअप जो है जो यहाँ पे जो बिल्डअप हो रहा है उसका टोटल यहाँ पे दिखेगा. ओके तो ऐसा है ये सिर्फ बिल्डअप दिखाता रहेगा. अगर बिल्डअप नहीं आया तो ये फ्लैट हो जाएगा. यहाँ पे देखेंगे ये पूरा फ्लैट है. तो यहाँ आप कॉल के टेबल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे अनवाइंडिंग रहेगा. यहाँ पे जो अनवाइंडिंग आ रहा है यहाँ पे अनवाइंडिंग. तो वहां पे जो भी माइनस में आएगा वो यहाँ पे ऐड होगा, अगर प्लस में आएगा तो इस लाइन में ऐड होगा. ऐसा ओके तो वो हमने Shri, अलग कर दिया है. I have a question. Okay. या If you see around 10:30, there was a huge call unwinding, right? या But at the same time, some minor call buildup is also there. Okay. हम्म. So how we are calculating this data? It will be there here, it will get added. So whatever, see where, if you see this massive unwinding, right? You're saying call side? Right. Yeah. But if this is the purely unwinding, now how we are taking that buildup? From which data point we are taking that 1 minute, buildup? 1 minute. Which side? Over here. At 10:30, right? No, 1 minute. Just a minute. Okay. From 10:03 to, I think that little bit buildup is over here. From here to here, there will be no buildup actually. From 10:03 to 10:27. Sorry, your voice is breaking. Maybe some network issue. Hello. 1 minute. It may be my internet. Let me just switch to another internet. Just a minute. Is my voice clear now? Hello? यस It's breaking. Okay. It's breaking, huh? Switch the net connection also. Just a Yeah, minute. और कोई कंफर्म करेंगे वॉइस अगर पीछे Audible, प्रोपर आ sir, रहा है audible. इट इज माय एट माय एंड आई थिंक माय एट माय एंड तो इट इज ओके Okay, just okay. ओके यू गॉट माय पॉइंट ना श्री Yeah, yeah.
No, see, wherever we are, see, wherever, if you see, you'll have to zoom in the chart and see, whenever, during this unwinding, there will be no build-up, definitely. Honey, but if you See, see in the chart below of build up, right? no, what We are I, getting very small bars of greens also, right? where, After 10, if you see. no, it is all flat over here. There is Nahi, no build. I am looking at 15-minute chart, okay? Oh, 15-minute chart. Right. I am looking at 15 Okay, chart 1 only. minute, 1 minute. Let me go there. 42, 1027, 1027. Yeah. If you see here, there is some minor build up also around this 1020, 1025, 1027. 1027 unwinding. It's showing actually huge call side unwinding. There is no build-up here. There is no build-up here. Absolutely. If you Hey, see, not in unwinding section, at the below chart of build up. okay, sorry. 1024 over here. This is 15 minutes, no? Maybe 15 minutes, 1 minute, 27. Okay, during this, you're saying during this 21, 21, 22, right? Right. Because Right, it is right. last 15 minutes, na? So it will be there. See over here at, Hey, my point is only this ki how we are calculating this data. Ki within this open interest, this much is the unwinding and this much is the build up. no, that is what I'm saying. See, at 24, you do 24 minus 15. So it is whatever buildup is there from here to here, it's calculating. So basically, it's only this. You got it? 27 minus 15, if you do, how much is it? 27 minus 15. It'll go 10, 12, 12, 15. At 12, yeah, it should not be there actually. Right, huh? You're right. It should not be there. सर मेरा One, क्वेश्चन भी सेम यही था शुरू okay, में 1, ये 2, बिल्डअप 3, कभी कभी 4, कंफ्यूज कर रहा 5. है 1, 24 क्या 1, 2, 3, 4, 5. It should not be there. I'll get this checked because it should not be there at all. 1 minute. They should be 0 actually. Yeah, it should be 0. I'll get this checked. Yeah, I'll get this checked. Maybe it will be correct. I don't know how it is calculated. No, I know because I gave the calculation. So this is definitely something wrong over here. I'll get this checked tomorrow itself and I'll get this fixed. This should not be there. There's some issue here. Because this is trailing 15 minutes, so it should not be there over here. Definitely. Over here, just let me confirm if at least unwinding is correct or not. Okay, this is correct. Build-up side is wrong. Yeah, unwinding side is Okay. correct. Okay. I'll get this checked and fixed immediately. Okay, dear. Okay. Okay, any other questions? Or kisi? My concern was only this. Sir, I can't hear. For me also, it is breaking up We now. are deriving Right. from that total number. This is build up and this is unwinding. For me, voice is breaking up. Just 1 minute. Huh? Let me. Can whoever has questions, can you please post in chat? I'll take it from there. Can we see display in fair value online chat? Can see. Okay, yeah. Can you just repeat the question again? Let me see if it will not break up for me. Shri, you are asking to me only? Yeah. I mean, anybody who has question, just repeat because the voice broke up earlier. So I'm just trying to see if Yeah. I can hear it. Yeah, it's clear now. Hello, can you hear me? Acha, Shri, I have a doubt. Okay, no doubt. Okay, actually, I just want to know कि now this pre-open market session also has been open for this Nifty trading. Okay, index trading. Okay. Yeah. So what data we are providing on that?
It's there over Is here. there is any options data is also feasible for that? Now, currently only futures they are giving. We have just added it here. Futures pre-open. So options pre-open is not yet there. It's only there for futures just to give some indication. The volumes are extremely low at the moment, so I don't know how good an indication this is going to be. But yeah, probably volumes might come in the future, and actual price discovery can happen. So some indication is there, of course, over here. So if you It will see, it will give a sentiment of market also, no? yeah, before so Maybe numbers are low, but it will it will add to sentiment to the yes, market. yes, very true. Yes, yes. So at least as of now, it's only futures. So maybe we'll see. And the volumes also are very low. So hopefully in the future, this will pick up Okay. and options will also get added, hopefully. Yeah. Any other questions about this or any other tool you want me to discuss further? सिकंद सर हाँ सिकंद सर मैं ट्रेड जिन यूज कर रहा हूँ ऑप्शन चेन के लिए जी तो उसमें आपने टोटल पीसी डाला हुआ है तो फिर उसमें पीसीआर अभी ऐड होने वाला है लाइव ऑप्शन चेन में या नहीं? पीसीआर हाँ सर ऐड करेंगे उसमें अभी अभी तो नहीं है एट प्रेजेंट उसमें वो ऐड काफी करेंगे अच्छा है वो काफी अच्छा है इसलिए कि उसमें आपने वो ऐड कर दिया है पीस माइनस सी कर दिया है लेकिन वो पीसीआर अगर हो जाए तो प्लीज वो जरा ठीक है देखिएगा ठीक ओ है कर ओके देंगे ओके सर ओके ओके Acha Shri, I had requested at other platform also, okay, on Telegram. Are we going to build up some line for POSA difference in that live tools option chain? Yeah, plan is there. It's just that yeah, we have not been able to do it. Lots of, I mean, the live data, lots of issues are there. So basically, trying to manage those, and we are trying to do that. So yes. Okay. What is happening is adding anything, any kind of calculations to live data, there is a possibility of slowdown. So we are making sure that there is no slowing down that is happening. So we are working on quite a few things, including live scans and all that. So uh, even those total PECOI different lines and all that, we may not. Of course, this full-fledged tool will not be there in live because it's just not possible to do all these calculations live. So And just a basic lines only, yes, not yes, too much. we are definitely we are definitely going to do that. So that is there, and we are already working on that. And whatever can be done, we are trying to see how to do, and all internal testing is going on those tools. So Okay, thank you. yeah. सर ये पीएमडीके में आप ये पीसीआर और आईबी कब ऐड होगा? अभी एट प्रेजेंट तो हमने स्टार्ट तो नहीं किया है उस पर तो देखेंगे सर अभी अभी एट प्रेजेंट तो आ, एक मिनट हाँ इसमें पीसीआर और आईवी जी सर हाँ ये मैंने नोट तो कर लिया है सर ये नोट तो कर लिया है लेकिन अभी इस पे काम कब चालू होगा मुझे अभी एट प्रेजेंट आइडिया नहीं है मुझे थोड़ा आइडिया अच्छा हो जाएगा सर इससे। ठीक है देखता हूँ सर ये इसको देखता हूँ मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि काफी चल रहा है सब डेवलपर्स बिजी हैं तो ये जब भी ये टूल लेंगे नेक्स्ट अपडेट के लिए वो उस टाइम पे कर सकेंगे मेरे ख्याल से। जैसे इसी Shri, चार्ट में ना हाँ I think इसी you टूल्स guys के are अंदर doing a fabulous job. Keep it up, yaar. थैंक्स 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 हाँ सर कुलदीप जी क्या बोल रहे थे हाँ मैं बोल रहा हूँ ये जीरो से ना ये निफ्टी में 25-50 ये ऊपर की तरफ स्केल जा रहा है और नीचे की तरफ ये माइनस में जा रहा है हाँ तो ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि इसका भी कुछ कैलकुलेशन है क्या कि कितना निफ्टी ने गेन कर लिया है मेन 25 हाँ सबसे मेन इसमें कैलकुलेशन तो जो प्राइस चेंज है नहीं मेन तो नहीं प्राइस इसमें चेंज ना है 20 अब ये जो ग्रीन लाइन ऊपर है 50 के ऊपर चल पहुंच गई है हाँ 20 हाँ ये यहाँ पे हाँ तो ये ऊपर तक स्केल आ जाता है 100 तक चला जाता है 150 तक चला जाता है स्केल हाँ ये तो ऑप्शंस ये 3 ऑप्शंस जो है ये इसमें प्राइस चेंज कितना हुआ है ये जनरली मेन कैलकुलेशन तो वो होता है
बस इसमें थोड़ा एक एडजस्टमेंट होता है, हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं तो चार्ट बराबर आने के लिए, तो बराबर इंडिकेशन देने के लिए हम लोग इसमें कुछ एडजस्टमेंट होता है इसका। सिंथेटिक फ्यूचर्स प्राइस होता है, आईवी होता है, उसके कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा ये एडजस्टमेंट। तो एग्जैक्ट आपको ये ऑप्शन, ये इन ऑप्शंस का आप अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से नहीं रहेगा, ये थोड़ा स्लाइट डिफरेंस रहेगा, लेकिन ओवरऑल मेन इसमें फोकस जो है वो प्राइस चेंज, इन ऑप्शंस का प्राइस चेंज है। अब ये जो ग्रीन लाइन है कॉल का है, कॉल का लाइन है, तो इन तीन ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस में प्राइस चेंज कितना हुआ है एट 9:32, तो ये यहाँ पे ये दिखाता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 70 पॉइंट्स है, तो 70 पॉइंट्स का चेंज आया है, प्लस हुआ है, यानी कि कॉल्स बढ़े हैं इसमें, तो ये दिखाता है। मेन मेन तो कैलकुलेशन वही है, वो करने के बाद फिर एक एडजस्टमेंट होता है उसमें, आईबी और सिंथेटिक फ्यूचर्स प्राइस, उसका उसका वो कैलकुलेशन, एक एडजस्टमेंट होता है, तो वो करते हैं, तो वो इंडिकेशन बराबर स्मूथ इंडिकेशन देता है, एक वन साइड। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर आया तो उसको मैनेज करता है वो एडजस्टमेंट, वो है उसका। और सर सही राइट टाइम कब है मॉर्निंग में स्टार्ट शुरू करने का इसका? एक 9:30 के बाद स्टार्ट कीजिए, इसमें बेटर रहेगा थोड़ा, 9:30 तक, क्योंकि बहुत प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत होता है, तो वो आप 9:30 तक ऐसे छोड़ दीजिए। वॉलेटिलिटी एक बार जब नॉर्मल हो जाए तो फिर उसके बाद कर, या फिर 9:30 के बाद आप कर सकते हैं, 15 मिनट दे दीजिए मार्केट को एडजस्ट होने के लिए, लेकिन आपको इंडिकेशन तो आ जाएगा उसके पहले भी। बस कभी कभी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है, तो आप 9:30 तक रुकेंगे तो फिर बेटर रहेगा उसको। Wait, this data is how much delay? 1.5 minute. 1 minute from, because we have a 1 minute delayed feed, and about 30 seconds for Okay, computations and all that. So 1.5 minute delay will be there. 1.5 minutes. अच्छा, this is okay कि we are providing, and this is तो कि we are providing cumulative price for C and P. Okay, Yeah. can we add here something कि how much is the change in C and P price with respect to the movement of Nifty price, index price? With reference to fair price, it is there. No? Fair price also change we have given over here. Here, the fair price change is 54 points, whereas call. If my point is if fair price is changed by 54 points, okay. Yeah. So how much is the difference in change of C and P price? Oh, between C and P. Okay. Yeah, I mean, I don't know. You mean you want a line kind of thing over From here? that actually we will get to know na कि if price is changing, so how much is the difference? Okay. You got my point? Yeah, because it is very clear here, but I guess if you want the price itself, नहीं, here तो I have to calculate कि भैया C 72 points, P is 89 minus 89 points, so their difference is almost how much it is, 17 points, okay, minus 17 points. Okay. Huh? So that I can get a line for this difference of these points. So it will give a picture कि how much is there any change or happening or not happening. Okay, I'll note it down. I'll note it down. So whenever we update the tool next time, I'll consider. Okay. Yeah, somebody had asked in chat about the availability of premium DK in live. So again, there are lots of issues that we have faced because due to the real-time nature of price updates. So we are still, there are a few issues. That's the reason why we have not released it. So we are still testing it internally. So once those issues are solved, I don't know when they'll get solved, but I'm hoping another 1 week, 1.5 week or so. So they should get solved. So by that, and once that is done, we'll release. Of course, there's going to be a restriction on the number of strikes you can select. Obviously, even over here, we have not given all strikes. So this near ATM also, we may not give too high, not over 5 or 7 strikes or so, because again, it can create issues, lots of issues, because if many strikes are there, that many data points at real time, we have to collect, process, and do computations, and then at real time, we have to display it here. So it is a little bit of a tricky task, and we don't want to just freeze up the chart and all that. So that's the reason why it's taking some time. So it's quite complicated. And of course, it's like most, about 80-90% done.
and some proper testing is going on. So once we clear that, we'll make it available. So I think the person who was asked is Dikshit. This is for Dikshit. We'll try and do this as soon as possible. एक 1.5 वीक लग सकता है सर. आपको पर्सनली अपडेट करूंगा मैं, क्योंकि आपने कई बार मैसेज किया है, मुझे डायरेक्ट भी मैसेज किया है. सो मैं इसके पीछे हूँ. हमारे डेवलपर्स के साथ ऑलमोस्ट एवरीडे डिस्कशन होता है इसके बारे में. ये है और कई टूल्स हैं लाइव में जिस पे काम चल रहा है. तो बस हमारा फोकस है उस पर. हम लोग जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करेंगे इसको. सर एक क्वेश्चन है. हाँ सर. प्राइस पर शो आई लाइव में भी है और डिले में भी है. हाँ ठीक है. डिले में हमें वीएफ दिया हुआ है, जी. तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस है वीएफ की कुछ ट्रेड करने के लिए? वीवैप तो इम्पोर्टेंट होता ही है सर. वो वीवैप तो इम्पोर्टेंट तो होता है. वीवैप के ऊपर हो लाइव तो में नहीं फिर है ना वो. लाइव में नहीं है. हाँ लाइव. वो क्या हो रहा है, इश्यू क्या है कि डेटा पॉइंट सब ब्रोकर्स दे नहीं रहे हैं वीवैप उनके एपीआई में. तो हमको कंसिस्टेंट सर्व अगर अवेलेबल है तो वो हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं. तो मेरे ख्याल से आप कौन सा यूज करते हैं, ट्रेड जीनी या फायर्स या जो कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं लाइव के लिए? हेलो. हाँ सर, ट्रेड जिनी यूज करता हूँ. हाँ ट्रेड जीनी में. हाँ ट्रेड जीनी में तो अवेलेबल है शायद वीवैप. बस हाँ वो लेकिन कई ब्रोकर्स देते नहीं है उनके डेटा एपीआई में. ट्रेड जिनी में वीएफ आ गया है शायद अवेलेबल है, देखना पड़ेगा मुझे. अभी शायद. लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो उसमें नहीं था नहीं, मतलब चार्ट में हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन डेटा डेटा एपीआई में अगर होगा तो हाँ शायद हम लोग वो, हाँ कंसिडर कर लाइव सकते है हैं. वो. ट्रेड जिनी में लाइव है. हाँ तो मैं हम लोग शायद कर सकते हैं, लेकिन कई ब्रोकर्स देते नहीं है, इसलिए जो कंसिस्टेंट रखने के लिए हमने ऐड नहीं किया होगा शायद. तो एक बार चेक करता हूँ मैं. चेक करके कल अपडेट करूंगा. ओके सर. I हाँ. think also add. I am just adding to that. Whichever price has been selected here. Your voice is very very low. Whoever is Is it speaking. Yeah, okay? yeah, yeah. Is it audible now? Yes, yes. I'm asking ki I'm just adding again. Ki someone Hmm. has asked if we can add for the selected strike price here the PCR for those strikes. Huh. Yeah. Please, Yeah. In premium DK, right? premium decay, right? Yeah, they have requested PCR and IV. I have noted that. Please, okay. Yeah. This also I have noted. Your request also I have noted. For those selected strike price. Yes. Whichever is selected, only for those. Yeah. Thank you. Automatically. Yeah. सर आईवी स्कूल का इंट्राडे डेटा नहीं रहता है. आईवी स्क्यू इंट्राडे मतलब हम लोग इसको वो सिर्फ इसमें देते हैं हम लोग. एक मिनट. हाँ. ये जो एक्चुअल जो स्क्यू होता है, ये जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला स्क्यू हाँ. जो एक्चुअल स्क्यू है, तो वो हम लोग इंट्राडे में यहाँ पे चार्ट वाइज ऐसे दिखाते हैं हम लोग. क्योंकि ऐसा कर्व तो पूरा मिनट बाय मिनट तो दिखेगा नहीं. वो दिखा तो सकते हैं, लेकिन वो उसमें बहुत वो पूरा फंक्शनैलिटी ऐड करना पड़ेगा, और वो मेरे ख्याल से उतना यूजफुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है. तो ये जिसमें इंट्राडे अगर कॉल चाहिए और तो पुट का आपको ये एक्चुअल स्क्यू का ट्रेंड मिल जाएगा इसमें ऐसे. तो तो इसमें स्क्यू. कॉल और पुट का सेपरेट हो सकता है क्या? सॉरी. कॉल और पुट का सेपरेट हो सकता है स्क्यू? पहले था हम लोग, लेकिन वो उसका फिर यूज उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने दिखाया नहीं. यहाँ पे ये जो फेयर नहीं, ये जो एक मिनट लोएस्ट वाला जो लाइन होता है, फेयर प्राइस जो होता है ना, उसके ऊपर साइड जो होता है वो कॉल का होता है, और उसके नीचे साइड का जो होता है वो पुट का होता है. तो ये कॉम्बिनेशन है ये. क्योंकि ये जो इन द मनी जब जाता है तो उसका वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, और ये मेनली आउट ऑफ द मनी का एनालिसिस है. तो ये आउट ऑफ द मनी के आपको यहाँ पे दिखेंगे. ये जो आप सारा स्क्यू जो जो आईवी कर्व जो दिख रहा है, ये आउट ऑफ द मनी का है मोस्टली. तो इन द मनी का होगा तो फिर वो ब्रेक रहेगा उसमें, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं रहेगा. वो आईवी कभी कंप्यूट होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका मिसप्राइसिंग होता है प्राइस का, इन द मनी ऑप्शंस का. तो फिर वो कंप्यूट बराबर नहीं होता है, वो चार्ट ठीक से नहीं आता है. पहले वैसे ही था चार्ट. तो उसके बाद हमने
सिर्फ आउट ऑफ द मनी का लिया है वो, पुट साइड आउट ऑफ द मनी, कॉल साइड आउट ऑफ द मनी, ऑप्शंस के आईवीज हैं, इसको प्लॉट किया है। तो अभी वो फिर से वो अलग तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो करके देख लिया है हमने, वो बराबर नहीं है वो। आउट ऑफ द मनी काफी लिक्विड होता है, तो फिर वो बराबर स्क्यू बन जाता है, उसका कंप्यूटेशन, स्क्यू का कंप्यूटेशन भी ठीक से हो जाता है। वैसे भी आउट ऑफ द मनी का ही होता है कंप्यूटेशन स्क्यू का। या एनी मोर क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चन किसी टूल के बारे में? चैट में देखता हूँ कोई कुछ, किसी ने कुछ पूछा है। हाँ, कोई पूछ रहा था कि फेयर प्राइस का वैल्यू कैंडलस्टिक में आएगा? कैंडलस्टिक में नहीं आएगा सर। वी कैनॉट डिस्प्ले फेयर प्राइस, this phase price that we are showing in candlestick format, because its computations are done only every minute, and we don't do like open eye low close for it. Only उसका जो क्लोजिंग वैल्यू है, एलटीपी जो होता है, सिर्फ वही हम लोग कंप्यूट करते हैं, तो वो वाला डेटा नहीं है हमारे पास। कोई क्वेश्चंस? सर या मतलब ये प्लेटफॉर्म के लिए मैं बहुत मतलब न्यू यूजर हूँ, तो मुझे एक डाउट था कि ये जो ऑप्शन चेन है, तो ऑप्शन चेन में हम ये रिलेटिव सी और पी का चार्ट देख सकते हैं क्या? रिलेटिव मतलब जो सी और पी हम ओपन करना चाहते हैं उसका चार्ट, तो ऐसा फैसिलिटी है क्या इसमें? हाँ, वो तो आपको यहाँ पे एक तो प्राइस वर्सेस वाई है, तो एक इसमें आपको अब जो भी कॉल या पुट यहाँ पे डालेंगे तो उसके हिसाब से चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर तो आपको ये, तो ये एक है। फिर दूसरा जो है, आप एफएनओ चार्ट्स में जाके आप जो भी है साइड बाय साइड डाल सकते हैं, इस यहाँ भी कर सकते हैं आप हाँ ट्रेडिंग। सर, तो इसके लिए विंडो शिफ्ट करना पड़ता है, तो डायरेक्टली मतलब वहां पे ही क्लिक करके हमें चार्ट मिल सकता है क्या वो कॉल और पुट का? वो तो सिर्फ इंडिविजुअली मिलेगा, फिर इंडिविजुअली अगर आप एलटीपी पे जाएंगे तो फिर वो यहाँ पे चार्ट आ जाएगा इसका, अगर ये हाँ इस हाँ, वक्त उसका तो इधर मतलब वहां पे क्लिक किया तो एग्जैक्टली वो कॉल कॉल साइड अगर क्लिक किया तो कॉल साइड का चार्ट आना चाहिए। दोनों साइड का आना चाहिए क्या? दोनों साइड का मतलब नहीं भी आया तो फिर कॉल एक का आ साइड का जाता है, अगर फिर आप यहाँ एलटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉल का आएगा। पुट हम्म, साइड एलटीपी करेंगे तो आप पुट का चार्ट आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये पुट का चार्ट है। ये कौन सा मतलब ये कौन सा ये कॉलम है? ये ये जो ये वाला ऑप्शन चेन यूज कीजिए, ये ऑप्शन चेन, उसमें हाँ आने के बाद ये एलटीपी का कॉलम है, एलटीपी पे जो प्राइस होता है उस पे हाँ क्लिक हाँ, कीजिए, उस पे क्लिक कीजिए। और ओके। इस तरफ भी एलटीपी, पुट साइड एलटीपी, कॉल साइड एलटीपी, इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा आपको चार्ट। अच्छा। और सर एक डाउट ऐसा भी है कि ये जो ट्रेडिंग कैफे इंडिया का मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ, तो वहाँ पे कैसा होता है कि वहाँ पे वो दिखाते हैं कि चल मतलब समझो कि अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, तो हम्म, 10:30 के टाइम के हिसाब से कौन सा जो स्टॉक है वो उसमें स्ट्रेंथ है। हाँ, ओके। तो पर्टिकुलर मैं मतलब बाकी का पैरामीटर नहीं चेक करूंगी और मतलब स्पेसिफिकली उसी स्टॉक में मैं मेरा अपना पोजीशन मतलब बनाऊंगी। ओके। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मिल सकता है? वहां पे उनका है ना पूरा कॉलम रहता है, और जिस स्टॉक में उनका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसका कॉलम का साइज बड़ा रहता है, और फिर बाकी का अगर जो स्टॉक है उनमें अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो उनका जो कॉलम का विड्थ है वो कम कम होता रहता है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप ऐसा वो कॉलम में उनका रिप्रेजेंट होता है। तो वो हाँ, हिसाब से वो इजी होता है कि एग्जैक्टली उसी टाइम पे मैं वो स्टॉक रेफर कर सकती हूँ। हम लोग फिल्टरिंग देते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट आपको ये बताएंगे नहीं कि ये स्टॉक में आपको ट्रेड करना है या ये स्टॉक स्ट्रांग है, इसमें आप कीजिए। तो फिल्टरिंग आप कर सकते हैं, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉइस और नहीं स्कैन। तो फिर मतलब वहां पे उनका नंबर आता है कि ट्रेंड स्कोर कैसा है वो नंबर शो करते हैं। हाँ, हम लोग
वैसा तो डायरेक्ट ऐसा फैसिलिटी अपने यहाँ पे कुछ मिल सकता है क्या? ट्रेंड स्कोर है मैडम यहाँ पे, स्क्रिप्स इन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अगर जाएंगे आप, हम्म। तो वन डे का अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आज के दिन कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये आप इस पे चार्ट पे अगर हाईलाइट करेंगे तो उसका चार्ट दिखेगा कि कितना स्ट्रांग है। और ये तो हम लोग ये यहाँ पे टाइम बुलिश, स्पेसिफिक मिल सकता है क्या, ऐसे मुझे पूछना था। सॉरी सॉरी, टाइम स्पेसिफिक मतलब अगर मैं 10:30 को मार्केट में आई हूँ, 10:30 में रेफर कर रही हूँ कि मैं कौन से स्टॉक में मतलब अप ट्रेंड में मुझे दिख रहा है और डाउन ट्रेंड में कौन से स्टॉक मुझे एग्जैक्टली ज्यादा प्रोमिनेंट साइज में दिख रहा है। नहीं उस टाइम पे क्या चल रहा है वो इसमें दिखेगा, लेकिन आपको अगर पीछे जाके किसी पर्टिकुलर टाइम का अगर देखना है तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो आप ये अगर टाइम 10, स्पेसिफिक नहीं है। हाँ टाइम स्पेसिफिक नहीं है, 10:30 आएंगे तो आप यहाँ पे 10:30 के टाइम पे उस टाइम पे कैच कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो लेकिन अगर आपको पीछे जाके 9:45 को क्या था तो वो यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, वो नहीं है यहाँ पे। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज। श्रीकांत जी। हाँ चेतन जी। ये फ्यूचर के डेटा में हाँ फ्यूचर के डेटा में अपन स्टॉक में जो बिल्डअप होता है हम्म, उससे व्यू कैसे लेते हैं जो आप दिखा रहे हो डे वाइज में? हाँ डे वाइज में। ऑल सिंबल नहीं, स्पेसिफिक सिंबल ले लो, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक है या तो अंबर है, अदानी है, कोई भी। नहीं वो तो एक बार आप अगर आपको आपने ऑलरेडी अगर फिल्टर कर लिया है सिंबल तक तो फिर तो आपको हाँ सिर्फ जाके प्राइस चार्ट देख के करना है ना आपको। फिर एक बार ये जो फिल्टरिंग है आपको सिंबल्स फिल्टर करने के लिए यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको देखना है लॉन्ग बिल्डअप में कौन से चल रहे हैं तो एलबी आप करेंगे तो यहाँ पे ये सारे लॉन्ग बिल्डअप वाले मिल जाएंगे। नहीं, मतलब वो ये तो ये नहीं, वो दूसरा है इसके नीचे सिर्फ स्पेसिफिक सिंबल का बिल्डअप दिखेगा। हाँ अभी ये तो फ्यूचर ये तो स्पेसिफिक फ्यूचर सिंबल सिंबल का ही है फ्यू- बिल्डअप ये। नहीं, मतलब फ्यूचर में जाइए फिर वो उसके नीचे है। कौन सा कौन सा टूल? ये डे वाइज ओआई डिटेल या तो प्राइस समरी, दो में से एक है कोई। हाँ बस समरी, ये समरी है तो ये इसमें समरी है ना, तो उसके नीचे वाला जो है वो क्या है, वो खोलिए। डिटेल्स। हाँ, ये तो हाँ स्पेसिफिक, अच्छा ओके। हाँ हाँ, इसमें इससे व्यू कैसे लेते हैं? इससे सिर्फ आपको लेटेस्ट आज के दिन का व्यू मिलेगा, इससे तो अच्छा यार ये डे वाइज समरी में भी वही दिखाएगा ये। अगर अगर आप ऑलरेडी इसमें आपने अगर सिंबल ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है हाँ, तो फिर सिर्फ यहाँ पे जो बिल्डअप चल रहा है तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं। फिर ये तो शॉर्ट कवरिंग चल रहा है इसमें, यानी कि माइल्ड बुलिश है शॉर्ट कवरिंग मतलब बहुत। इसमें 5 डेज बिल्डअप को देख के फिर देखते हैं ना हाँ जैसे। देख सकते, एक मिनट इसमें 5 डे बिल्डअप अवेलेबल है क्या इसमें? हाँ जी है। हाँ 5 डे प्राइस चेंज, 5 डे वाई चेंज, 5 डे बिल्डअप। हाँ बस वही यहाँ पे आपको दिखेगा कि माइल्डली बुलिश है तो ये आप देख सकते हैं लास्ट 3-4 दिन में क्या चल रहा है। सारा शॉर्ट कवरिंग मोस्टली है, एक दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग है तो बस उसमें बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं रहा है ये, तो उतना कुछ बड़ा मतलब ऊपर का मूव तो नहीं चल रहा है इसमें। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो ओआई है, हम्म। मतलब इसमें हाईएस्ट ओआई और लोएस्ट ओआई दिखता है हाइलाइटर से? हाईलाइट शायद इसमें नहीं है, शायद हाईएस्ट और नहीं है। नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि मान लो कि रिवर्सल होगा तो वहां से पता चलेगा कि हाईएस्ट ओआई से अब रिवर्सल होगा, और हम्म। लोएस्ट ओआई से अब यहाँ से ये रिवर्सल होगा, या ठीक तो है कोई मार्क, ट्रेड, इसको ये कोई मार्किंग ट्रेंड तो कर, पकड़ेंगे। हाँ मार्क तो कर सकते हैं इसको हम लोग हाँ इसमें रिसेंटली हाई लो का मार्किंग डाला था तो ओपन इंटरेस्ट का भी डाल सकते हैं। तो ये वाला यहाँ पे रहेगा, ये हाईएस्ट रहेगा यहाँ पे। वहां से तो अनवाइंडिंग ही हुआ है सीधा, यहाँ पे हाँ अनवाइंडिंग हुआ है और मार्केट ऊपर जा रहा है और अनवाइंडिंग हो रहा है तो बेसिकली शॉर्ट कवरिंग चल रहा है इसमें। हाँ, तो उसका शायद हाईएस्ट उसका 1,15,000 ही होगा। हाँ यही यही है इसमें, हाँ ठीक है। तो इस अगले सीरीज दो का। तीन महीने में जाएंगे ना पीछे बैक साइड, तो ये 1,15,000 था, 1,15,000 से ऊपर कभी गया ही नहीं होगा, और गया होगा तो शायद 2-3 हजार ही गया होगा। ओके
तो फिर क्या वो हाईएस्ट का एक रहता है कि भाई ये स्टॉप इतने हाईएस्ट से ज्यादा नहीं जाता? ओके। तो ऐसा कोई अगर इसमें कोई है मतलब कि अपना पास? और ये मार्किंग हम दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस सीरीज के लिए बताएगा ये। हाँ, वो पुरानी सीरीज से कंसर्न नहीं होगे फिर? हाँ, पुराने सीरीज से नहीं रहेगा उसका कंसर्न। वैसा कुछ करना हो तो वो अलग हो जाता है वो। या तो फिर इसका मान लो कि इसका नीचे चार्ट मिल सकता है फिर? तो चार्ट भी नहीं होगा ना फिर 3 महीने का? नहीं नहीं, इसमें हमारा वैसे भी सीरीज सीरीज का चार्ट होता है सिर्फ। हाँ। पूरा का पूरा कंटिन्यूअस चार्ट्स नहीं है हमारे पास तो। हम्म। हाँ, वो भी नोट किया है, लेकिन वो कभी हुआ नहीं है। वो भी करना है एक्चुअली। तो कंटिन्यूअस चार्ट्स नहीं है। कंटिन्यूअस चार्ट्स अगर होता तो फिर उसमें आप वो मार्क कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें हाईएस्ट पता आपको मिल चलेगा कि जाएगा उसमें। यहाँ से हाँ, रिवर्सल हो रहा है। तो देखते हैं सर, इसमें वो भी नोट किया है तो मैं एक बार देखता हूँ अगर क्या कर सकते हैं उसका। क्योंकि वो क्या होता है कि 3-4 दिन हाईएस्ट डिलीवरी होती है, उसके बाद 2-3 दिन साइडवेज होगा, फिर वो रिवर्सल देता है। राइट राइट, बराबर। तो क्या होता है ये डेटा रीड करने के बाद ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको जी। फिर और फिल्टर लगाना पड़ता है। हम्म। ठीक है सर, वो सोचता हूँ मैं। हम लोग वो कंटिन्यूअस चार्ट्स अगर होगा तो फिर उसमें वो इजी हो जाएगा उसमें आपको। हाँ, उसमें डिलीवरी पीसीआर आईवी सब इजी हो जाए। हाँ। ठीक है, थैंक ठीक यू। है। Okay, anyone has any other questions? Yeah, actually, last question, okay, from my side. Yeah, Sorry. yeah, If you see the last day of data of this CPO difference table stats, na, okay. हाँ, So I have chosen near ATM 9 strikes, right? okay. हाँ. Near So here you ATM, see near ATM 9 strikes, okay. okay. So here, if you see, there is a continuous build-up in the last 10 or last 5 minutes, okay. But for that build-up, data is almost same. If you see, number is 5,96,000, 5960850. Hmm. Okay. Yeah. How is it same? Continuous 4 or 5 entries are same for build-up. In chart, I'm seeing, okay. No, but because those values are very close. Values are very close. C minus P difference. Because I'm asking for, both side unwinding is I'm happening. asking, nahin, if you go down into the charts, okay. Okay. Here, if you will see this build-up, I am saying This build-up chart? 15 minute build-up, 15-minute build-up, Okay. 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 Uh, Oh, you mean this one build-up? this one, if you see this number is same, 1389, 1389. Okay. How's it? Yeah, this anyway, we just discussed, right? There's some issue in the chart itself. Okay. So I'll have to check the whole thing. Tomorrow I'll be sitting with the developers and just Please, trying to figure I out what think has gone I think wrong. it's a crucial data points. Okay, Yeah, I'll get this. I mean, this is my priority tomorrow because I've please. already noted it. Okay, So I'll update you tomorrow. thank you. Yeah. Okay. Any other questions, or we can stop Sir, over I have here? one question Ah, on the OI stats, right? yeah. Okay. The option OI stats, if you can open, please. Yeah. Yeah. So for the particular strike, you are showing up. You can hover on any of the strike price. You Okay. are showing this data, right? So Yeah. is it possible to show also the volume of PECE over here? Yeah, it can be done actually. So that would be much helpful while seeing like who is unwinding on what volume things are happening around, right? Okay. And Yeah. also the question is the auto update range. So what is the duration for this? So how long, I mean, how frequently this gets updated? It'll be practically, if you see it, 4 minutes and 30 seconds. 4 minute 30 second. And Yeah. what is your latency as well, sir? What happens is we get data 1 minute delayed because that is the Okay. feed we use. Mm-hmm. And then we require about 20-25 seconds for processing. So Okay. average, So we'll say 1.5 minute it takes. 1.5 minutes for receiving and processing the data, correct? Yes, yes. Okay. And you are updating this range every 4 minutes. No, I mean, it updates every 4 minutes, 4.5 minutes, because 3 minutes. See, why you get only NSE computes after 3 minutes and Mm-hmm. updates it.
and then we have a 1 minute delay due to the delayed feed. Okay. So we get it after 1 minute, and then after that we require about 20-25 seconds to process. Okay, So so average, whatever the data that I am seeing after the refresh, it's actually a delay is 4.5 minutes, right? I should yeah, consider like yeah, it's yeah, lagging by 5 minutes correct. closely. Yeah, 4.5 minutes. Yes. Okay, is it the same across all the data, even for that PEOI difference and everything, Yeah, right? everything, because the feed is the same. It is the same. Okay. Yeah. But only price, volume, and all that updates every 1.5 minute. But Okay. OI, Only the OI everything data related is to the OI thing. will update, say, Ah, 4.5 okay, minute it okay. requires. Yeah, So got it. 3 Okay. plus 1.5 minutes. Thank you. Yeah. But if you can consider the request of adding the volume for every strike that you are refreshing on the Yeah, OI yeah, side, sure. that will be I'll helpful. note it Yeah. down. We can Thank add you. it. Thank you. Thank you so much. Okay. Okay. Any more questions or any other tool? Fine. We'll stop it here then. We'll take it.